Friends, welcome to VARNAN Learning Group. Today I have came with lecture 2. In the previous lecture, I have given you the detailed analysis of the 26 June 2019 NET Commerce question paper and also I had started with the economic series. Economic series को हम 26 जून 2019 के पेपर से ही कर रहे हैं. I will give you the detailed explanation of the questions plus what can be the other questions from the same topic. And in topic से जो भी questions previous year में repeat हुए हैं, all I have provided you ताकि आपको topic depth में समझ आ जाए plus जो भी कोई MCQs इस particular topic से बनते हैं वो आपके cover हो जाए. So today I am starting with lecture 2. प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट वाज फ्रॉम इकोनॉमिक कैपेसिटी. इकोनॉमिक कैपेसिटी कौन से मार्केट में नहीं पाया जाता है? द आंसर वाज परफेक्ट कंपटीशन. आप उसके फुल एक्सप्लेनेशन के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो विजिट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन. सो टुडे आई एम डिस्कसिंग द क्वेश्चन इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्री रिक्विजिट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब ऑप्शन पढ़ने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ. व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, सपोज एक वेजिटेबल सेलर है, ही इज सेलिंग अ पोटैटोज, ओनली पोटैटो ही इज सेलिंग. आपको वो पोटैटोज देता है 10 रुपए में, आपके नेबर को देता है 12 रुपए में एंड फर्दर वो जब आगे जाता है तो उसको एक और बायर मिलता है, ही इज गिविंग द सेम पोटैटोज एट 8 rupees. दैट मीन्स he is selling same product, that is potatoes, but different buyers by charging different price. This is known as price discrimination. So it is a practice by a seller to charging different price from different buyers from the same product. So अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम पढ़ लेते हैं क्या होता है. अ मोनोपोलिस्ट often charges different prices of the same product from different consumer or different industries. This price policy of the monopolist is called price discrimination. And now what is this monopolist? So the seller of the monopoly market is known as monopolist. अब ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज ओनली पॉसिबल इन monopoly market where there is only a single firm who is the sole producer of the product for which there are no close substitutes. He is the only seller in the market. It has neither rivals nor direct competitors. And monopoly market का जो best example है, that is railways and state electricity board, which is providing the electricity, is also the example of monopoly market. Here the firm and the industry is same. He is the only price maker. So if he is the only price maker, he can charge different price from the different consumers from the same product. So this is known as price discrimination. So अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कौन सी मार्केट में पॉसिबल है, दैट इज इन मोनोपोली मार्केट. अब क्यों पॉसिबल? बिकॉज वहां पे सिंगल सेलर होता है, ही इज द ओनली प्राइस टेकर, तो वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है. नाउ लेट्स सी कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की क्या क्या कंडीशन है? इट इज नॉट लाइक दैट कि आप डायरेक्टली किसी से भी कोई भी प्राइस चार्ज कर सकते हो. देयर आर सम कंडीशंस. दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली. मोनोपोली होना जरूरी है. दैट मीन्स ओनली वन सेलर and he is the only price maker and the firm and industry is same and there is no close substitutes of the product and there are no competitors and neither the rivals. So there must be the existence of monopoly. The firm must have monopoly power. Then another is difference in elasticity of demand. Price elasticity of product may differ in different market segments. मीन्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. इफ हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टू मार्केट अगर हमारी सेम होगी, देन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन टू मार्केट्स विल नॉट बी प्रॉफिटेबल. सो बिकॉज व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टू मार्केट इज इक्वल, तो जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू होगा प्रोडक्ट का इन बोथ द मार्केट्स विल ऑल्सो बी इक्वल. ऑन द कंट्रारी,
If price elasticity of demand in two market is different, then जो marginal revenue होगा हमारा product का in these market will also be different. So it will be more in one market and less in another. In such a situation, it will be profitable to transfer the commodity from less marginal revenue market to the more marginal revenue market. Thus, difference in elasticity of demand for the product in two different markets makes the price discrimination profitable. So, there must be difference in elasticity of demand. So the first was monopoly होना चाहिए, दूसरा है difference in elasticity of demand होना चाहिए, then the third point is separate market. Market must be kept separate either by time, physical, distance and nature of use. हमारा जो market है वो separate होना चाहिए. In this way, the difference in price will disappear which the monopolist wanted to maintain. अगर हमारा प्राइस मार्केट अलग अलग होगा तो जो भी कोई परचेज करने आ रहा है उसे नहीं पता चल पाएगा कि उससे कितना प्राइस चार्ज हो रहा है, वो एक मोनोपोलिस्ट के लिए मेंटेन रहेगा. इट इज पॉसिबल. Then fourth is it is possible when a unit of commodity cannot be transferred from cheap market to expensive one. हम चीप मार्केट से एक्सपेंसिव वन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, तभी ये पॉसिबल है. थर्ड इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द मोनोपोलिस्ट इन डिवाइडिंग एंड सब डिवाइडिंग द मार्केट शुड बी लीस्ट. एंड फोर्थ है सिक्स्थ है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बाय चेंजिंग द नेम, पैकेजिंग, लेवल एटसेट्रा कैन चार्ज डिफरेंट प्राइजेस. हम नेम, पैकेजिंग, लेवल हम ये चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस चार्ज कर सकते हैं. देन the last one is consumer behavior. Their consumer ignorance and prejudices. कंज्यूमर को पता नहीं होता है वेदर उससे ज्यादा प्राइस चार्ज हो रहा है या कम प्राइस चार्ज हो रहा है. ही इज नॉट नोइंग. अगर कोई सेलर है, अगर उसका एक शॉप है, सपोज दूसरे मार्केट में दूसरी है, दूसरे मार्केट में सपोज एक मार्केट में ही इज सेलिंग एट लोअर रेट्स एंड अनदर मार्केट में ही इज सेलिंग एट हायर रेट्स. तो जो कंज्यूमर है ही इज नॉट नोइंग, ही देयर इज इग्नोरेंस कि उससे ज्यादा प्राइस लिया जा रहा है या कम प्राइस लिया जा रहा है. सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. नाउ क्वेश्चन हमारा कंडीशंस में से आया था. लेट्स सी द ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर. यस, हमारी कंडीशन थी एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली. सेकेंड इज प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्सटीट्यूट्स इन डिफरेंट यूजेस. नो, अगर हमारे क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे तो अगर हम अपने बायर से ज्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, ही विल स्विच टू अनदर वन. So product have multiple close substitute is not a prerequisite of price discrimination. So B option will be the answer. Then third one is markets are separated and segmented. Yes, separate market होना चाहिए. Price elasticity of product must differ in different markets. Yes, जो हमारा price discrimination में हमारी difference in elasticity of demand होता है. Let's take a quick revision. हमने पढ़ा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में होता है कि हमारा जो सेलर है वो अपने बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहा है ऑफ द सेम प्रोडक्ट. इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहाँ होता है? वो होता है हमारा मोनोपोली मार्केट में. अब हम पढ़ते हैं कंडीशंस हमारा क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली होना चाहिए, डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होना चाहिए, मार्केट हमारा सेपरेट होना चाहिए, एंड इट इज पॉसिबल व्हेन अ यूनिट ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम चीप मार्केट टू एक्सपेंसिव वन. और जो एक्सपेंडिचर होता है मार्केट को डिवाइड एंड सब डिवाइड करने में, दैट शुड बी लीस्ट. और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हम नेम, पैकेजिंग, लेवल को चेंज करके भी कर सकते हैं. एंड कंज्यूमर बिहेवियर इग्नोरेंस होता है, कंज्यूमर इग्नोरेंस एंड प्रेजुडिस होता है. नाउ नेक्स्ट वी सी. अब हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में से को मैं इस पूरे टॉपिक को मैं कवर कर रही हूँ इस लेक्चर में. तो हमसे अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हमारे या फिर काइंड्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे 3 काइंड्स होते हैं. पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देन ज्योग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूज, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज. सो पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है? व्हेन अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन.
Personal price discrimination becomes possible because of the ignorance of the consumer. Little difference in prices and the nature of goods and services can be the personal price discrimination. For instance, एक डॉक्टर है charging different fees for the same type of operation from rich and poor patient is personal price discrimination. Now, second is geographical price discrimination. This type of discrimination is also called dumping. Now, the question can come, geographical price discrimination is also called dumping. So, geographical price discrimination में क्या होता है? When a monopolist charges different prices in different areas for the same product, then it is called geographical price discrimination. Places where substitutes of the goods are available, there the monopolist charges less price. Where there are no competitors of the product, there he charges high price. In other words, in a market where demand is elastic, he charges low price. And where demand is inelastic, he charges high price. So this is known as geographical price discrimination. Now, because another is on the basis of use. When a monopolist charges different prices for different uses of product, then it is called price discrimination, and this type of discrimination is known as trade discrimination according to use. For instance, rate of electricity charged per unit for domestic use is more than for of commercial use. So हमने पढ़े यहाँ पे 3 types of price discrimination. One is personal, another is geographical जिसको हम dumping भी बोलते हैं, एंड थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ यूज जिसको हम ट्रेडिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं. नाउ हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जो डिग्री है वो दी है हमें अर्थर सी पिग्यू ने. मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन हिज बुक इकोनॉमिक वेलफेयर. नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसने दिया है. दैट इज अर्थर सी पिग्यू ने. या फिर किस बुक में से किया है, दैट इज द इकोनॉमिक वेलफेयर. सो आपको सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. देन फर्स्ट डिग्री और परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. जॉन रॉबिन्सन ने फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम नाम कहा था कि इट इज अ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. याद रखना, मिसेस जॉन रॉबिन्सन. Sometimes it is also known as optimal pricing. With perfect price discrimination, the firm separates the market into each individual consumer and charges them the price they are willing and able to pay. यहाँ पे consumer surplus नहीं होता है. Second degree price discrimination है, the price of a good or service varies according to the quantity demanded. अगर हमने larger quantities are available at lower price and अगर हम स्मॉलर क्वांटिटी लेते हैं दैट इज इन हाई प्राइस. जैसे इट इज अ प्रैक्टिस, सपोज डेली आपने सुना है अगर आप 5 किलो आलू ले लोगे आई विल गिव यू एट 10 रुपीज. अगर आप 1 किलो लेते हो द प्राइस विल बी 12 ओनली. सो सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज दिस ओनली. अगर हम बल्क में लेते हैं तो कम प्राइस चार्ज होगा और अगर हम कम क्वांटिटी में लेते हैं तो ज्यादा प्राइस होगा. Third degree price discrimination is the price varies according to consumer attributes such as age, sex, location and economic status. तो जो थर्ड डिग्री होता है वो कोटा सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है. जैसे सीनियर सिटीजन से हम प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं एंड लेडीज कोटा, दिस इज नोन एज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. तो हमने 3 इसमें से तीनों डिग्रीज में से क्वेश्चन आ सकता है. यहाँ पे डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किसने दिया है, अर्थर सी पिग्यू, ये भी याद रखना है. और किस बुक में आया है, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये भी याद रखना है. अब हम फर्दर देखते हैं इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पहले आ चुके हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स इन केस ऑफ कौन से मार्केट में, दैट इज मोनोपोली. Which of the following is not a condition for successful price discrimination? First option is different elasticity of demand for different consumer. Seller should be an MNC. No. Location of, yes, ये भी condition आपने पढ़ी है. Location of market at distant places. Consumer ignorance and prejudice, ये भी आपने conditions में पढ़ा है. Now the third question was जो पहले पूछा गया था, price discrimination is profitable and possible if the two markets have equal elasticity of demand. नहीं, क्या पढ़ा था आपने कंडीशंस में, different elasticity of demand. So the option will be B. So आप ये सारे previous year questions को अच्छे से